So today we'll start from question number 13. Okay, read this question. Number 13. A vendor buys 36 smartphones and tablet computers for $28,065. Given that the smartphone costs $895 and a tablet computer costs $618, find the number of each item the vendor buys. Okay, so then what do you think? क्या करना होगा? 36S plus no 1 minute 36S plus D equals 28,065. Okay, then No, wait, no, that's wrong. Sorry. Actually, 36 equals S plus D. And then 895S plus 618T equals 28,065. you said a vendor buy 36 smartphones and tablet computer for itna rupees. He buy this much smartphones. Okay, it is given to you, and tablets computers. The amount of tablets computer is not given to you, so that's equal to this much amount. Given that a smartphone cost itna, so if one smartphone cost is equal to itna and one tablet computer cost is itna, then find the number of each atom in the vendor buy. Okay, so actually he want to buy 36 smartphone and some computer, like unknown numbers of computer. Okay, but his budget is this much, like he want to buy 36 smartphones plus unknown computer, so that is 28065. this is the budget. Given that a smartphone cost itna, okay, now we have the price of one smartphone. One smartphone price is this much, and a tablet computer cost itna, and the cost of one computer is this much. Find the number of each atom the vendor buy. Okay, तो हमने एक एक एटम. सो लेट्स से हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज प्राइस ऑफ वन स्मार्टफोन इज एस and the price of one computer tablets is T. Okay, so if you want to buy 36 smartphone, then the price of 36 smartphone will be equal to 36 times the price of one smartphone. So the price of one smartphone is represented by S. This is actually one. S is equal to one smartphone price. T is the one tablet price. Okay, so if you want to buy 36, so this is actually wrong. This is the wrong statement. Okay, actually यहाँ पे this is the cost. Equal के इस साइड पे मेरे पास cost है. That's okay. But यहाँ पे मेरे पास amount है. This is amount. So your amount will not be equal to cost. Okay, ये बिल्कुल गलत है. लाइक मैथ्स में आपने कॉस्ट को कॉस्ट के इक्वल लेना है. ओके, अगर उस साइड पे आप कॉस्ट ले रहे हो तो इस साइड पे भी आपने कॉस्ट ही लेना है. तो इसको हमने कॉस्ट में कन्वर्ट करना है. तो यू हैव 36 स्मार्टफोन्स. इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्राइस ऑफ ऑल दी स्मार्टफोन्स, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट इट लाइक दिस: 36 टाइम्स वन स्मार्टफोन price. Okay, like if you want to buy 10 toffees, okay, and the price of one toffee is 5 rupees, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपने कितने देने हैं? That will be equal to 50, because 5 times 10 will be equal to 50. So your 10 toffees will cost you 50 rupees. Okay, so 10 is the amount of toffees and this is the price of one toffee.
The price of one tablet is 5, and this is, so if you multiply these two, so you will get the total price. Similarly, here you have 36 smartphones, and the price of one smartphone is represented by a capital S. So if you want to find the total price, so what you will do, you will multiply 36 times S. So one smartphone price is S, so 36 S हो जाएगा. So this is the price of 36 smartphone plus. Okay, okay, now in this case, okay, and unknown, the amount of this computer tablets is unknown, so that is U. This is the amount of computers, and the price of one tablet is T, so UT हो जाएगी. That's equal to 28. अच्छा, अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि given that a smartphone cost इतना, one smartphone cost इतना, so it is given to us, and a tablet computer cost इतना, so this is also given to us. So what you will do, you will need to put the value of S. So 36 times 895 unknown, and the cost of one computer is 618. Okay, so आप सॉल्व कर लो, इससे आपके पास आ जाएगा. तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो इट मीन्स के यहाँ पे मैंने अमाउंट ऑफ स्मार्टफोन्स कितने कंसिडर किए थे, S, और S कितना था, दैट इज 36 मैंने यहाँ किए थे. लाइक मैं आई हैव 36 स्मार्टफोन्स. तो दी यहाँ पे अगर हम ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता, देन माय आंसर विल बी लाइक स्मार्टफोन कितने हैं, दैट्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्मार्टफोन आपके पास आ जाएंगे 36 आ जाएंगे, और अमाउंट ऑफ टैबलेट्स जो हैं वो कितने आ जाएंगे, दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इन दिस के 6 आ जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव में आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम इतने स्मार्टफोन को बाय नहीं कर सकते. लाइक वेंडर जो है, ही इज़ अनएबल टू बाय 36 स्मार्टफोन, तो इसको आपने डिक्रीज़ करना है. तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको नहीं लेते, इसकी जगह हम U1 लिख लेते हैं, इसकी जगह हम U2 लिख लेते हैं. दिस इज स्मार्टफोन. ओके, अमाउंट ऑफ स्मार्टफोन. U1 मीन्स अमाउंट ऑफ कंप्यूटर या टैबलेट्स. U2 means amount of smartphones. Okay, so if you want to find the price, okay, find the price आपने find करना है. So what you will do, you will need to multiply this U1 times price of one's computer tablet. So price of one computer tablet is given to you, that is 618. This is the amount. If you want to buy one computer, then the price will be equal to 1 times 618 US dollar. So this is the price of one computer. If you want to buy two computer, then the U1 will be equal to 2. So 2 times 618 US dollar हो जाएगा. Okay, so this will give you the total cost. Okay, then smartphone, total number of smartphone is represented by U2, या इसकी जगह आप XY भी यूज़ कर सकते हो. And the price of one smartphone is 895 US dollar. Okay, so that will be equal to total your budget. So budget कितना है, that is 28065. This is the vendor total budget. Okay, so now what we will do, we will need to find the U1 and U2. Okay, U1 is the amount of tablets and U2 is the amount of smartphones. Okay, इसका second equation क्या बनेगा, इसका second equation, wait. Okay, actually a vendor buy 36 smartphones and computer tablets. This is one statement. Okay, this is not like this a vendor buy 36 smartphones. Okay, ये आपने जहन में नहीं रखना. लाइक यहाँ पे स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे उन्होंने एंड यूज़ किए हैं. सो इट मीन्स के ए वेंडर बाय 36 स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर टैबलेट्स. लाइक आउट ऑफ 36 ही विल बाय सम
computers and some smartphones. So it means like your U1 plus U2 will be equal to 36. U1 is the amount of tablets. Okay, this is the amount. तो आपके यहाँ पे amount आ जाएगा, तो यहाँ पे amount कितना है? U1 is the amount of tablets plus U2 is the amount of smartphones. So this will be your second equation. This is first equation, this is second equation. इनको फिर आपने सॉल्व करना है प्रॉपरली. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो या जो भी आपको इजी लगे, या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लो. तो फिर इनको सॉल्व कर लो. तो इससे आपके पास U1 एंड U2 आ जाएगा. ओके, एंड दैट्स विल बी योर फाइनल आंसर. सॉल्व कर लोगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Read this question. 5 cups of ice cream milk tea and 4 cups of citron tea costs $26.80, whereas 7 cups of ice cream milk tea and 6 cups of citron tea cost $38.60. Find the difference between the cost of 1 cup of ice cream milk tea and 1 cup of citron tea. What do you think? क्या करना होगा? We can take the ice cream milk tea as I and then the citron tea as C. So 5I plus 4C equals $26.80. Okay, 5 cup of ice cream milk tea and 4 cup of equals to इतना where is 7. So what do you think? क्या करना होगा यहाँ पे? 5I then plus 4C equals 26.80. okay, where is 7 cup of ice cream milk? Okay, so you will find I and C by using substitution method. Then this will be your final answer. Confusion or any? If this is 6, this is 4, then your final answer will be equal to? Yeah, your final answer will go to. Okay, so you should be very careful in this type of question. Okay, question number 15. Read this question. Vishal mixes coffee powder that costs $2.50 per kg with coffee powder that costs $3.50 per kg. Given that he sold 20 kg of the mixture at $2.80 per kg, such that he does not make any profit or incur any loss, find the mass of each type of coffee powder that he uses for the. Okay, interesting question. What do you think? Do you have any idea? Step by step सामने करने. So hopefully you will do this question. After these 3 questions, we will end up the class. Okay, so we need to find the mass of each type of coffee powder that he used for the mixture. So let the mass of let the mass of $2.50 powder that's equal to X, the mass of
3.50 US dollar powder is equal to Y. Okay, this is the mass and we need to find these values. Okay, and that will be my final answer. Okay, so 2.50 per kg, this is the amount per kg. Okay, does not make any profit or incur any loss. Find the mass of each type of coffee powder that he used for the mixture. Okay, actually in this case we will be having only one statement. Given that he sold itna at itna, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस की तरफ हम आ जाते हैं. तो दिस इज़ 2.50 US dollar per kg and this is my mass. So if I multiply it by mass, m kg, m is the mass, so this kg will cancel by this kg. So इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास US dollar प्राइस आ जाएगा. So as we took this like the mass of 2.50 US dollar powder is X. So 2.5 US dollar X हो जाएगा प्लस 3.50. ओके, गिवन दैट ही सोल्ड इतना, तो टोटल मास आपके पास इतना है. तो इन मास, इस मास में ओके, तो 3.50 ये आपका Y आ जाएगा. So this is the total price of 2.50 powder, US dollar powder, and this is the total cost of 3.50 US dollar powder. Okay, so that will be the total price. Total price हमें यहाँ पे गिवन है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे मेथड्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. अगर वो टोटल प्राइस हमें गिवन होता, ओके, तो लाइक इफ़ ही विशाल मैक्सिस इतना, लाइक उन्होंने इतना US डॉलर यहाँ पे लगाए, कॉफ़ी वो बना रहा था, तो कॉफ़ी में वो 2 टाइप्स ऑफ पाउडर यूज़ कर रहा था. एक पाउडर जो था वो आपका, उसका कॉस्ट जो था वो 2.50 US डॉलर था, और दूसरे का कॉस्ट जो था वो 2.80 US डॉलर का था. अब जब ये कॉफ़ी बन गए तो फाइनली वो इस पूरे कॉफ़ी को कितने में सेल कर रहे हैं, वो 2.80 US डॉलर में इसको सेल कर रहे हैं, और वो कोई प्रॉफिट इसमें अर्न नहीं कर रहा. ओके, ही डू नॉट मेक एनी प्रॉफिट्स. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि टोटल मास हमारे पास वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये कॉफ़ी पाउडर दोनों को मिक्स करके कितना फाइनल वेट कितना आ गया, वो 20 kg आ गया. तो अगर मैं इसको X ले लूँ, द मास ऑफ दिस पाउडर इज़ X, एंड इफ़ आई टेक दिस लाइक द मास ऑफ दिस विल बी इक्वल टू, तो ये आपका 20 माइनस X हो जाएगा, 20 kg माइनस X. लाइक ये जितना यूज़ हुआ है उसका मास कितना है, टोटल आउट ऑफ 20 इसका मास कितना है, दैट इज़ X, दिस इज़ X. तो बाकी जो रह जाता है वो कितना होगा, और टोटल आपका कितना है, टोटल आपका मास 20 kg है. तो ये बाकी जो रह जाता है इसका मास कितना होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू, यू कैन से लाइक दिस 20 टोटल माइनस X, दैट्स विल बी योर दिस प्राइस पाउडर मास. ओके, ये समझ आ गया आपको कि नहीं, ये वाला स्पेशली? यू गॉट इट? Yes. If you have any confusion, you can ask questions. Okay, so now after this, अब हमने क्या करना है, X times 2.5, so you will get total mass 2.50 times X plus 3.50 times 20 minus X. Okay, so from this you will get total मास. तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ये आ जाएगा टोटल मास 2.80, दैट्स विल इक्वल 2.80 US डॉलर
टाइम्स टोटल मास कितना है, दैट इज़ 20। इसका मास कितना था, इस पोर्शन का मास कितना था जब वो बना रहा था, इसके जो मास था वो था 2.50 यूएस डॉलर पर केजी था। 1 केजी का प्राइस इतना था। सो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे 2 केजी यूज़ हुए हैं तो 2 टाइम्स 2.50 आपने करना है। अगर यहाँ पे 3 केजी यूज़ हुए हैं पाउडर तो वो आपने 3 टाइम्स 2.50 करने हैं, तो उससे आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें टोटल पाउडर का मास गिवन नहीं है, तो हमने सपोज के लिए कि मास ऑफ 2.50 यूएस डॉलर पाउडर लाइक 2.5 यूएस डॉलर का जो पाउडर है, दिस पाउडर, उसका टोटल मास कितना है, लेट्स से दैट इज एक्स। तो इसका अगर हमने टोटल प्राइस फाइंड करना है इस साइड का, तो वो आपका 2.50 यूएस डॉलर टाइम्स एक्स हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद प्लस, क्योंकि वो मिक्स कर रहे हैं दोनों पाउडर्स को, सो सेकेंड टाइप्स ऑफ पाउडर, वो उसका प्राइस कितना है, उन्होंने कौन सा पाउडर इसमें यूज़ किया, कौन से प्राइस वाला पाउडर इसमें यूज़ किए, उन्होंने इसमें 3.50 वाला पाउडर यूज़ किया। लाइक द प्राइस ऑफ 1 केजी इज इक्वल टू 3.50 यूएस डॉलर। सो इफ़ अगर यहाँ पे 2 केजी यूज़ होगा तो फिर आपने 2 टाइम्स 3.50 यूएस डॉलर करना है, तो आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगा। बट यहाँ पे अननोन है कि उन्होंने कितना मास यहाँ पे यूज़ किया है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये तो आपका x हो गया, ये पोर्शन आपका x हो गया, और टोटल मास उन्होंने हमें गिवन है कि ये इन दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, विशाल ने दोनों को मिक्स कर दिया, और जो फाइनल मास था जब उन्होंने वेट कर दिया फाइनल, तो वो उनके साथ 20 केजी आ गया। तो टोटल मास आपको गिवन है 20 केजी, और ये मास मैंने इस साइड का जो मास है वो मैंने x ले लिया। तो ये मास कितना हो जाएगा, वो 20 टोटल माइनस दिस मास, दैट्स विल इक्वल टू दिस वन। अगर ये आपके पास 5 है तो ये कितना होगा, 15 होगा। So 5 plus 15 will be equal to 20. So if your x is equal to 5, तो 20 minus 5 will be equal to 15. तो मैंने ये assumption ले लिया। Instead of y, I took this 20 minus x. तो वो आपके यहाँ पे आएगा। तो if you want to find the total price of this side powder, so that is 3.50 times 20 minus x हो जाएगा। That will be equal to, तो total mass कितना है, total mass आपका इतना है 20, तो 20 times प्राइस ऑफ 1 केजी, यानी विशाल ने जब फाइनल पाउडर तैयार कर दिया तो उसके बाद उनके पास उन्होंने कितना प्राइस रख दिया, 2.80 पर केजी। लाइक 1 केजी प्राइस इतना हो गया। सो 1 केजी प्राइस इतना, सो फॉर 20 केजी प्राइस विल बी टू 20 टाइम्स 2.80, सो दिस विल बी 20 टाइम्स 2.80 यूएस डॉलर। तो इनको आपने सॉल्व करना है, सो यू विल गेट दी एक्स वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, -1x प्लस 3.50 टाइम्स, यहाँ पे 70 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या है 2.80 टाइम्स 20, तो 56 इस साइड से आ जाएगा। सो ये x को आपने उस साइड पे लेके जाना है, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव x हो जाएगा, -x विल बिकम पॉजिटिव x, और ये 56 इस साइड पे आ जाएगा, तो 70 माइनस 56 हो जाएगा। तो योर x विल बी इक्वल टू 70 माइनस 56 से क्या आता है, दैट्स इक्वल टू 14। तो इट मीन्स कि योर x वैल्यू इज इक्वल टू 14। सो इट मीन्स कि यहाँ पे कितने केजी का पाउडर यूज़ हुआ था, 14 केजी का। सो यहाँ पे कितना रह गया है, 6 केजी यहाँ पे रह गया है। 20 माइनस 14 विल बी इक्वल टू 6। तो इट मीन्स कि आउट ऑफ 20, 14 केजी पाउडर जो यूज़ हुआ था वो उसका प्राइस 2.50 पर केजी था, और जो 6 केजी पाउडर यूज़ हुआ था उसका प्राइस 3.50 यूएस डॉलर पर केजी था। तो द मास ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 14 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6। ओके, फाइंड द मास ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉफ़ी पाउडर दैट ही यूज फॉर द मिक्सचर। सो होपफुली वी आंसर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? एलिया स्क्रीनशॉट? Yes. ओके, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, टीचर ने ये सारे क्वेश्चंस किए थे? ओके, मेथड यही यूज़ किया था या डिफरेंट मेथड से टीचर कर रही थी? यही। ओके, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को रीड कर लो। A mobile company charges a fixed rate of X cents per minute for the first 120 minutes of talk time, and another rate of Y cents per minute for each additional minute of talk time. Ethan paid $26.80 and $32.40
for 175 minutes and 10 minutes of talk time on 2 different occasions respectively. Find the amount he has to pay if he uses 140 minutes of talk. Okay, X cents per minute for the first 120 minutes of talk time. So it will be X times 120 हो जाएगा. Okay, and another rate of Y cent per minute for each additional minute of talk time. So उन्होंने क्या किया था, 175 मिनट्स के चार्जेस इतने आ गए एंड 210 मिनट्स के चार्जेस इतने आ गए. सो 175 में इट मीन्स के आउट ऑफ 175 यू विल स्प्लिट इट इन दिस के 120 प्लस 175 minus 120 will be equal to 55. Yes, 55. So 120 plus 55 will be equal to 175. Okay, so it means कि you will multiply for the first x times 120 उसमें आ जाएंगे, प्लस उसके बाद जो पर मिनट चार्ज होगा वो कितना होगा, y cents पर मिनट चार्ज, तो y times 55 हो जाएगा उसके. Like if for first 120 minutes mobile company will charge you 1 rupees, then for the other additional minute mobile company will charge you let's say 2 rupees. तो let's say आपने 150 मिनट्स आपने बात कर ली, तो इट मीन्स कि 150 में 120 आपके ये प्राइस आ गया, 120 मिनट्स का प्राइस जो है वो 120 रुपीज़ आ गया, और उसके बाद जो जितने भी एडिशनल मिनट्स हैं 30 मिनट्स आपने एक्स्ट्रा बात कर ली, तो 30 मिनट्स टाइम्स 2 कर लो, वो 60 रुपीज़ आपके पास वहाँ से आ जाएंगे, उसके चार्जेस आ जाएंगे. तो टोटल प्राइस आपको कितना पे करेगा, 180. तो यहाँ पे भी उन्होंने हमें x सेंट्स पर मिनट में दिया है फॉर द फर्स्ट 120 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम, एंड अनदर रेट ऑफ y सेंट पर मिनट फॉर ईच एडिशनल मिनट्स ऑफ टॉक टाइम. So you will write the statement like this: x times 120 plus y times 55. 55 is actually he talk up to 175 minutes. तो 120 यहाँ पे आ गए और बाकी जो रह जाता है उस पर ये इतने चार्जेस आएंगे. तो दैट्स इक्वल टू कितने थे, 26.80 यूएस डॉलर. ओके, उसके बाद सेकंड के लिए कितने थे, सेकंड भी आपके इस तरह हो जाएगा कि x टाइम्स 120 मिनट्स वहाँ पे चले जाएंगे, और 210 से 120 निकाल लो तो क्या आता है, 90 आता है. इज इट राइट, चेक कर लो. तो y टाइम्स 90 हो जाएगा. दैट्स विल कॉस्ट हिम, तो ये आ जाएगा. सो व्हाट यू विल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x एंड y वैल्यू फाइंड कर लो. उसके बाद आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लो, y की वैल्यू फाइंड करो बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसके बाद दिस विल नॉट बी योर फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर विल बी फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही यूज़ 140 मिनट ऑफ टॉक टाइम. तो 140 में क्या हो जाएगा, 120, तो आपका ये प्राइस हो जाएगा x टाइम्स 120 प्लस y टाइम्स कितना रह जाता है, 20 मिनट्स आपके यहाँ पे रह जाते हैं, तो टोटल 140 इक्वल हो गया. सो दैट्स विल बी योर फाइनल आंसर. इस स्टेटमेंट में फिर आपने x और y की वैल्यू पुट करनी है. x जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है, और y जो यहाँ से आ जाएगा तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है. तो फ्रॉम दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर. इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो, यू विल गेट द फाइनल टोटल प्राइस. ओके. In the mathematics test, the average score obtained by class 2A is 72 and the average score obtained by class 2B is 75. The average score obtained by the two classes is 73.48. Given that there is a total of 75 students in the two classes, find the number of students in each class. Okay, 2A. ओके, यहाँ पे हम क्लास 2A और 2B नहीं लेते क्योंकि उसमें हमने फिर वैसे ना 2A और 2B को भी आप यहाँ पे 2 को भी कंसिडर कर लो. सो ये मिस्टेक नहीं करनी है, उन्होंने इसलिए दिए क्वेश्चन में ताकि स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाए, सिली मिस्टेक. तो ये 2A नहीं लेते, हम A और B ले लेते हैं. ओके, ताकि मिस्टेक ना हो, 2 की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. तो क्लास A, द एवरेज स्कोर ऑब्टेन बाय क्लास A इज इतना. सो फॉर क्लास A द एवरेज मीन्स sum of all students
sum of all students score divided by number of class A students। तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि एस ए हो जाएगा और नीचे एन ए हो जाएगा। एन रिप्रेजेंट नंबर एंड ए रिप्रेजेंट द क्लास। ओके, फॉर क्लास बी द एवरेज दैट्स विल बी इक्वल टू एस बी हो जाएगा। दिस इज फॉर द सम ऑफ ऑल स्टूडेंट मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास बी। ओके, so average score is given to you, that is 72, and the average score obtained is, so this is given to you, this average is given to you, and this average is also given to you. So this is 72 and this is 75. Okay, and the average score obtained by the two classes, so average score obtained by two classes is this, so 73.48. Two classes means के sum of all the students in class A and B. So it means के SA, sum of all students of class A, sum of all students of class B, divided by number of all students of class A plus number of all students of class B. Given that there is total of 75 students in the two classes, so it means के NA plus NB is given to me, that is 75. So this will be like your SA plus SB, that will be equal to 73.48 times NA plus NB, that is 75, that is given to you. तो एक इक्वेशन आपका ये आ गया, that's equal to 5511. दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा? दूसरा हम इस तरह कर लेते हैं कि इन दोनों का आप ऐड कर लो, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, दिस विल बिकम 567 हो जाएगा, तो 147 हो जाएगा, और ये ऊपर आपका एस ए प्लस एस बी हो जाएगा डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ओके, सो एस ए प्लस एस बी इज दिस मच 147, दैट्स विल बी इक्वल टू 5511 डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, दैट्स विल इक्वल टू 5511 डिवाइड बाय 147 आ जाएगा, तो दैट्स विल इक्वल टू 37.48। तो दिस इज माई वन इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है कि एन ए प्लस एन बी विल इक्वल टू 75, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी, दैट्स इक्वल टू 75। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपने इसके बाद एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है और एन ए और एन बी को फाइंड करना है। सो एन ए विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए and NB represent the number of students in class B. So this will be your final answer. Okay.